Hello, dear children. Welcome once again to your channel, Computer Science with Meena Dogra. Wish you all a very, very happy and prosperous 2022. आज इस साल का ये मेरा पहला वीडियो है बेटा जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ. एंड दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद द series that we have taken up, writing basic Python scripts. Okay, so this is going to be the fourth part. Already 3 parts are there on the channel. You can watch them. This will, Python is a language of beginners. Easy to read, easy to learn, easy to write. Fine. So after going to, in case you have watched the previous 3 parts, you must have got to know how easy it is to implement, to solve problems, to write codes in Python. So in continuation to that, experiencing that ease, I have come up with this 4th part of writing basic Python scripts series, and today we are going to take up this problem, that is how we can swap 2 numbers, 2 variables in 3 different ways. So if you can look at this picture, children, that x is a variable and y is also a Python variable. Variables we call objects in Python. If x is pointing to 10 and y is pointing to 10, after this video is going to get over, you learn how we can interchange the values to which x and y are pointing. ओके तो ये स्वैपिंग हो गया. x जिसे पॉइंट करा था y उसे पॉइंट करेगा, और इधर से y जिसे पॉइंट करा था x उसे पॉइंट करेगा. ठीक है ना. So we are going to learn this in 3 manners. One is like using a third variable. That is going to be the first way, using a third variable. Second way would be to use arithmetic operators, plus and minus. How we can use? We will not be using a third variable now, but we will do the same task of swapping using plus and minus. These are the 2 binary arithmetic operators of Python. Third way, again, we would be not using a third variable, but we are going to take up another set of arithmetic operators, multiplication and division. This is the integer division. This is double slash जब हम use करते हैं, it gives us the answer in integer form. Okay, though if your division operator, which results single slash, it results into a quotient with float format, but using double slash we can obtain the same result, the same quotient in integer format. So that gives us the integer portion of the quotient. तो हम इसको यूज करेंगे. एंड बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो 3 कोड्स मैंने बनाए हैं, आपको पता होगा, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगी, दैट इन Python variables we call objects. Okay, we call them objects basically, and objects like other programming languages here do not contain values, rather they contain references to the values, है ना. So जैसे x एक object है, अगर मैं उसमें x is equal to 10 लिखती हूँ, so x is going to point to the memory location that is containing 10. Similarly, if I write y is equal to 20, y is going to point to a memory ID बोलते हैं उसको, यूनिक ID which is containing 20. फाइन. लेकिन इस वीडियो की सिंप्लिसिटी को रखते हुए कि आपको कॉन्सेप्ट पर मैं फोकस करूं, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रही हूँ कि x is storing 10 and y is storing 20. इनफैक्ट ये रेफरेंसेस स्टोर करते हैं, बट क्योंकि अभी मुझे आपको कॉन्सेप्ट कन्वे करना है, इसलिए मैंने इसको सिंपल रखा है. बट आई प्रॉमिस टू ब्रिंग अ डेडिकेटेड वीडियो on how these references are created when we declare objects very soon. Okay, so let's dive into this video, children. For the sake of explanation, पहले मैंने ये तीनों कोड्स बना रखे हैं, बट उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये एक PDF क्रिएट करी है. आप अगर कमेंट करोगे तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, एंड आई एम गोइंग टू टेक अप द एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ दिस PDF. फाइन. सो अब आप बच्चा देखो यहाँ पर कैसे हुआ है. मेथड 1, दैट इज यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल. ठीक है ना, हम थर्ड वेरिएबल की हेल्प से इसको स्वैपिंग को करेंगे. तो जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, ओपनिंग डॉक्यूमेंटेशन आप दे दीजिए. ठीक है, अ कमेंट विद दैट लिस्ट द प्रोग्राम स्टेटमेंट, जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो यहाँ दीजिए जो आपका कोड करने वाला है. देन गिव द नेम ऑफ द ऑथर. यू कैन गिव द डेट ऑल्सो, लाइक इफ टुडे, लाइक इफ इट इज जो भी आपकी डेट है, आज 3rd of January है, सो आई विल राइट 3rd of January 2022 ओवर हियर. तो आप इस तरीके से कोड करके रखिए, है ना.
This is self documentation of your code. Now let's begin with the logic. जो हमारी executables हैं यहाँ से I am creating x which is storing 10. मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने simple रखने के लिए यहाँ पर 10 लिखा है, अदरवाइज x 10 का रेफरेंस कंटेन करेगा, लेकिन फिर एक्सप्लेनेशन थोड़ी इफेक्ट हो जाती, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज डाली हैं. ठीक, सो x is 10 and y is 20. ठीक, अब अगर मैं ऐसे लिख देती थी कि भाई x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू x, हमें तो ऐसे लगता है ना लिटरली कि स्वैपिंग हमारी इस तरीके से हो रही है, भाई x में y चला गया, y में x चला गया, वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा. x में 10 चला जाएगा है ना, और y में वापस से 10 आ जाएगा, तो स्वैपिंग कहाँ हुई? नहीं, मतलब y में देखो आपने लिखा x इज इक्वल टू वाई, x में 20 गया, और फिर आपने लिखा y इज इक्वल टू x, तो y में भी 20 गया, तो ये तो स्वैपिंग नहीं हुई ना. तो दैट मीन्स हमें कुछ इंटरमीडिएट काम हमने स्किप कर दिया, इसमें कुछ और बीच में होना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारा ये काम रुका है जो नहीं रुकता और स्वैपिंग हो जाती. सो व्हाट वुड हैव बीन दैट वैल्यू, व्हाट वुड हैव बीन दैट मेथड बेटा? उसके लिए हमें क्या करना था बच्चा, हमें यहाँ पर x को y की वैल्यू से ओवरराइट करने से पहले x को कहीं सेव करना चाहिए था. फिर हम x को ओवरराइट करते और फिर x में y की वैल्यू चली जाती और x की वैल्यू हमारे पास सेव थी, जिस वेरिएबल में हमने वो सेव करी वो हम y में डाल देते. वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया. ठीक है, तो अब मैं फ्रेशली करती हूँ, x को क्रिएट करती हूँ बच्चा. x को मैंने यहाँ लिखा, ठीक, और यहाँ पर मैंने y ले लिया. दो ऑब्जेक्ट्स मेरे क्रिएट हो गए, x इज इक्वल टू, और इनकी इनिशियल वैल्यू आप चाहो तो यूजर से भी ले सकते हो, यहाँ पर मैंने असाइन कर दी. अब देखो बच्चे मैंने क्या किया, जरूर करना है इस कोड में, स्वैपिंग से पहले है ना ओरिजिनल वैल्यूज को दिखा देना. दैट मैंने लिखा वैल्यू ऑफ x बिफोर स्वैपिंग इज x, 10 आ जाएगा स्क्रीन पर, मतलब पूरा मैसेज आ जाएगा. वैल्यू ऑफ y बिफोर स्वैपिंग, y की वैल्यू 20 आ जाएगी. डू दिस, ओके, क्योंकि आपको बताना है कि आपके प्रोग्राम में पहले क्या आउटपुट था और फिर बाद में क्या है आउटपुट हुआ, चेंज्ड आउटपुट क्या हुआ. अब यहाँ से हमारा लॉजिक स्टार्ट होता है. दीज 3 स्टेटमेंट्स विल डू द रिक्वायर्ड टास्क. हमने क्या करा, हम एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट करते हैं. ये मेरा एक थर्ड वेरिएबल है, दैट इज टेम्प. कोई भी नाम आप लिख सकते हो, एक्स वाई जेड ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे. मैंने इसे एक टेम्पररी वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थर्ड वेरिएबल बच्चा क्रिएट किया. ठीक है, इसको अब मैंने क्या असाइन किया बेटा, देखो मैं यहाँ क्रिएट करती हूँ इस वेरिएबल को टेम्प. ठीक, और इसमें मैंने क्या असाइन कर दिया बच्चे, इसमें मैंने असाइन कर दिया x यानी कि 10. ठीक, इसमें टेम्प में x असाइन कर दिया. अब x और 10 सेम वैल्यू को रेफर कर रहे हैं, दैट इज 10. तो x मेरा सेव हो गया है ना, यहाँ पर एक्चुअली मैंने x को सेव कर लिया. ठीक, अब नेक्स्ट लाइन देखो, क्या ये लाइन हो गई, ये लाइन देखो, x इज इक्वल टू वाई. x इज इक्वल टू वाई में अब आप क्या कर रहे हो, देखो x में अब आपने y को यानी 20 को डाला. ठीक, तो x में क्या आ गया बच्चे 20. अब x ओवरराइट हो गया, बट कोई टेंशन तो है नहीं बिकॉज x हम सेव कर चुके हैं टेम्प में ऑलरेडी, है ना. सो लाइक वी आर हैप्पी, हमारा कुछ गड़बड़ तो हुआ नहीं. अब क्या बचा, x में तो y पहुंच गया बच्चे, y में भी तो x पहुंचाना है. तो y में x कैसे पहुंचाओगे, x आपने किस में सेव किया था बताओ, टेम्प में सेव किया था ना. तो अब आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू टेम्प, है ना. तो y में क्या था बच्चे 10, वो यहाँ पर आपका आ गया. ठीक, तो अब देखो जो आपकी इनिशियल वैल्यूज थी 10 और 20, क्या वो इंटरचेंज नहीं हो गई, क्या वो स्वैप नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई, है ना. x इज नाउ स्टोरिंग द रेफरेंस टू 20. x हमारा 20 हो चुका है जो y की वैल्यू थी, और y हमारा 10 हो चुका है. और ये हमने किस तरीके से किया, वी डिड इट विद द हेल्प ऑफ दिस थर्ड वेरिएबल टेम्प. टेम्प में पहले हमने x को सेव कर लिया, फिर x को ओवरराइट किया विद y, और फिर y में जो x की सेव्ड वैल्यू थी टेम्प में वो असाइन कर दी. तो जब हम इन अब प्रिंट करेंगे आफ्टर कैरिंग आउट दीज 3 स्टेप्स, आफ्टर स्वैपिंग वी विल ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट, दैट इज दीज वैल्यूज वुड हैव गॉट स्वैप्ड. ठीक है, सो इसको चला के देखें, जल्दी से देखते हैं. आप चाहो तो इसको रन टाइम पर यूजर से भी वैल्यूज को ले सकते हो. सो दिस इज द कोड, नाउ आई एम गोइंग टू रन इट. See, the output is before all of you. Value of x and y before swapping were 10 and 20 respectively, whereas after swapping they are now 20 and 10 respectively. Okay, so this was the first code for the video, that is first method using a third variable. अब आते हैं एक और interesting method पर,
that is method number 2, and in this we will not use third variable, no use of third variable. इन्हीं दोनों से x और y की हेल्प से ही हम स्वैपिंग कर लेंगे, लेकिन उसमें हम यूज करेंगे two arithmetic operators plus and minus को. ठीक, so this is using the arithmetic operators plus and minus. Fine, so let's proceed. बहुत सिंपल है. यहाँ पर भी हमने लिख दिया Python script to swap two variables without using a third variable, and we will be instead now using plus and minus to swap the values. ऑथर में अपना नाम दे दो, डेट डाल दो. ठीक, सो अगर आप डेट भी डाल देते हो तो आपका ये 3rd of January 2022. ओके, दिस इज जनवरी. फाइन, अब चलते हैं बच्चे हम अपने काम पर. ठीक, हमने यहाँ पर x को क्रिएट किया. ठीक है, x को क्रिएट किया. x मेरा कितना हो गया बच्चे 10 और y 20. ठीक है, y हो गया 20. अब वैसे जैसे हमने पहले किया था, we will print the values of x and y before swapping. They will come out to be 10 and 20 respectively. Now let the magic begin. अब देखते हैं कैसे प्लस और माइनस मैजिकली हमारा काम करते हैं. देखो, आपको करना क्या है ये ध्यान रखना. आप सबसे पहले x में x और y का सम असाइन करोगे. ठीक है, x में दोनों का सम डाल दो. ठीक, सम और डिफरेंस की हेल्प से होंगे. सम और डिफरेंस की हेल्प से स्वैपिंग होगी, तभी तो हमने क्या लिखा है प्लस एंड माइनस. तो आप x और में y ऐड करो तो x कितना हो जाएगा देखो 30. 10 plus 20, x will now change to 20. ठीक है, मैं नीचे लिख रही हूँ. ओके, y अनअफेक्टेड है. y हमारा x will change to 30. 20 plus 10 30. y हमारा अनअफेक्टेड है, दैट इज 30 ही है. ठीक है, नो इफेक्ट. y में हमने कोई चेंजेस नहीं की. x में हम दोनों का सम ले आए, तो ये लाइन हो गई. अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, y को पहले चेंज करेंगे. ठीक है बेटा, y में x पहुंचाएंगे. कैसे पहुंचाएंगे बताओ. दोनों का टोटल किस में है, x में. ठीक, उसमें से मैं अगर y की करंट वैल्यू को डिडक्ट कर दूंगी, यानी 30 में से अगर मैं y की करंट वैल्यू क्या है 20, 30 माइनस 20 कर देती हूं तो मेरे पास क्या आता है 10, और इस वैल्यू को मैं किस में डाल देती हूँ बच्चे, y में. ठीक है, दोनों के सम जो x में था उसमें से y की ओरिजिनल वैल्यू 20 को डिडक्ट किया और y में डाल दिया. तो अब बताओ y में क्या पहुंचा, बताओ y में क्या पहुंच गया बेटा. y में अब पहुंच गया हमारा 10. x की वैल्यू y में पहुंच गई. x अपडेट हो चुका है, यानी x की वैल्यू फाइनली y में जाके सेव हो गई. ठीक, अब लेट द मैजिक कंटिन्यू. ये लाइन भी हो गई. अब x में क्या करना है, x में पहुंचानी है y की पिछली वैल्यू, लेकिन वो तो हमारे पास अब रही नहीं है ना. y की पिछली वैल्यू तो रही नहीं, लेकिन हमारे पास है क्या इस समय, हमारे पास दोनों का सम है और x की वैल्यू है 10 जो कि y में सेव्ड है. तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू जो कि क्या है 30, उसमें से y की वैल्यू जिसमें y क्या है मेरा इस समय, जिसमें x पहुंच चुका है 10 डिडक्ट कर दूं बच्चे. ठीक है ना, तो क्या आ गया आंसर बताओ. हमारे पास क्या आंसर आ गया 20, और 20 असल में क्या है यहाँ पर जो y की पिछली वैल्यू थी. तो अब मैंने यहाँ क्या लिखा, x इज इक्वल टू, x में था 30 में से y डिडक्ट किया, y में था 10, तो x मेरा कितना हो गया बच्चे 20. तो यानी स्वैपिंग हो गई ना. अब x में क्या पहुंच गया 20, y में 10, तो ये x और y इंटरचेंज हो गए. कैसे किया आपने, फिर से सुन लो. आपने दोनों का टोटल निकाल के x में सेव कर दिया. ठीक, अब x में से सम का काम खत्म, अब माइनस करेगा अपना काम. सम में से आपने y की वैल्यू डिडक्ट कर दी, तो हमारे हाथ में क्या आ गई x की वैल्यू, वो हमने वापस से y में डाल दी. y में x पहुंच गया, कोई थर्ड वेरिएबल यूज नहीं हुआ. अब y में क्योंकि x सेव हो चुका है, तो अब x में क्या डालेंगे, जो x की ऑलरेडी वैल्यू है सम ऑफ x एंड y, उसमें से y डिडक्ट कर देंगे. y में एक्चुअली x पहुंच चुका है ना, तो एक तरीके से आप सम में से x डिडक्ट करके x में डाल रहे हो, तो x में क्या जा रहा है अल्टीमेटली y जा रहा है. तो ये भी हमारी स्वैपिंग बहुत आसानी से हो गई बिना किसी थर्ड वेरिएबल को यूज किए. और इसके बाद आप इसको दिखा दो आफ्टर स्वैपिंग कैसे वैल्यूज चेंज होती हैं, वो आप दिखा दीजिए बेटा. कोड आपके सामने है, मैं रन करके दिखा देती हूँ. आप देखो वैल्यूज इंटरचेंज हो गई हैं. ठीक है, सो कैसे किया हमने, वी डिड इट विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस. अब इसी तरीके से हम आते हैं मेथड नंबर 3 पर.
ठीक. Method 3 maybe we will be using arithmetic operators, but this time we'll use the product, multiplication and your integer division. से floor division भी कह देते हैं, जो हमारा ऑपरेटर है जिसमें हमारे पास क्वोशिएंट का इंटीजर पोर्शन आता है बेटा. ठीक है ना, ये जरूर याद रखना. सिंगल स्लैश से आपका काम नहीं होगा, उसमें तो फ्लोट वैल्यू आती है. डबल स्लैश जिसमें इंटीजर क्वोशिएंट आता है वो आपको यहाँ पर यूज करना है. ठीक, तो वैसे करते हैं. हमने यहाँ पर अपनी प्रोग्राम स्टेटमेंट दे दिया कि थर्ड वेरिएबल, सॉरी, without using third variable we are going to now swap two variables, and then I have written asterisk and division operator जो हमें यूज करना है. हमने वो भी लिख दिया कि हम फ्लोर डिवीजन और प्रोडक्ट को यूज करेंगे. अपना नाम लिख दिया ऑथर में, और फिर आप यहाँ पर डेट डाल दीजिए. ठीक बेटा, जैसे आपकी डेट डलेगी उसके बाद आपका काम होगा शुरू. ठीक, सो हम एक्स एंड वाई बना लेते हैं जल्दी से. ठीक, एक्स लिख, वाई लिख. फाइन, इनिशियल वैल्यूज दोनों की डाल दी. मैंने दोनों की वैल्यूज इनिशियली यहाँ पर लिख दी. ठीक, अब डिस्प्ले भी करा दिया बिफोर स्वैपिंग, है ना. बिफोर स्वैपिंग आपने डिस्प्ले करा दिया. 10 और 20 आ गया. अब यहाँ से मैजिक शुरू करते हैं. ठीक, देखो पिछले एग्जाम्पल में आपने प्लस और माइनस यूज किया था ना, उस प्लस की जगह आप यहाँ यूज करोगे एस्टेरिक, और माइनस की जगह आप यहाँ यूज करोगे फ्लोर डिवीजन. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. ठीक, तो x इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. एक्स में क्या पहुंच गया बेटा, 200. 10 इंटू 20 200. दोनों का प्रोडक्ट सेव कर लो, जैसे लास्ट टाइम आपने दोनों का सम सेव किया था. अब प्रोडक्ट आ गया हमारे पास. अब हम डिवीजन की हेल्प से वैल्यूज इंटरचेंज कर देंगे. ठीक, नेक्स्ट लाइन हमने क्या लिखी, हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स डबल स्लैश वाई. अब बताओ x में क्या आ चुका है, प्रोडक्ट आ चुका है ना. उसको अगर मैं y से डिवाइड करती हूँ, y कितना है मेरा 20. ठीक है, y कितना है बच्चे मेरा 20. तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू 10. ठीक है, मतलब y की इनिशियल वैल्यू को, y चेंज नहीं हुआ है मेरा. प्रोडक्ट में से अगर मैं y को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल आएगा, x और y के प्रोडक्ट से y को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास x आ जाएगा ना बेटा. वो मैंने y में डाल दिया. तो y मेरा कितना हो गया 10, यानी x की वैल्यू y में आके सेव हो गई. ठीक, x मेरा y में पहुंच चुका है. अब दूसरा काम मेरा क्या बचा, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई. अब x में y को पहुंचाना है. x में y को कैसे पहुंचाएंगे, बिल्कुल सिंपल. x और y के प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे y से. y में x आ चुका है, ये ध्यान रखना, है ना. तो अब आपने यहाँ क्या लिखा, x इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई. तो अब आप मुझे बताइए बच्चे, x इज इक्वल टू कितना होगा, x में प्रोडक्ट है, y में x पहुंच चुका है, यानी y में क्या आ चुका है 10. x कितना हो गया बेटा मेरे, बताओ x कितना हो गया 20. तो अब आपका यहाँ पर ये भी कट गया, और यहाँ पर आपका क्या आ गया 20. x दो बार चेंज हो रहा है बेटा, पहले तो प्रोडक्ट जा रहा है, उसके बाद x और y में डिवीजन की हेल्प से स्वैपिंग हो रही है. प्रोडक्ट में से y को डिवाइड करते हैं तो x y में पहुंच जाएगा, और जब प्रोडक्ट में से y को डिवाइड करते हैं तो y x में पहुंच जाएगा. इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई बच्चा, इंटरचेंज. थी ना इंटरेस्टिंग टेक्निक. तो अब इसको भी रन करके देख लेते हैं हम. ठीक, लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड एंड सी. सिंपल, 10 20 20 10, आवर वर्क इज डन. फाइन. सो इस तरीके से बेटा आप 3 मेथड्स को यूज करके ये स्वैपिंग का टास्क परफॉर्म कर सकते थे. मेथड 3 था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एस्टेरिक डिवीजन, कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज नहीं हुआ. मेथड 2 था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस, थर्ड वेरिएबल यूज नहीं हुआ. मेथड 1 था यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, जिसमें हमने एक टेम्पररी वेरिएबल की हेल्प से ये काम को किया. सो दिस वाज अबाउट स्वैपिंग 2 वेरिएबल्स इन 3 डिफरेंट मैनर्स. और टेक्निक्स के साथ इसी सेम काम को करने के लिए मैं जल्दी पार्ट 5 के साथ आऊंगी. टिल देन डू वॉच दिस वीडियो फुल्ली, एंड इफ यू लाइक इट do let me know in the comment section, and subscribe to my channel if you are already not a subscriber. Children, your motivation, your comments will always be very helpful, not just for me as a teacher, but for any teacher, you know, who is there to mentor all of you. Okay, so thank you children. So till we meet again, what do I write? You all know what do I write. मैंने इसीलिए जगह खाली छोड़ी थी क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या लिखना था, मुझे यहाँ पर लिखना था बेटा happy learning and God bless you. Okay, so this is the with this note I end this session, and I'll be back soon with another interesting video.
That is part 5. Thank you, children.